प्रश्न 1। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? What kind of death has the poet called सुमृत्यु? आंसर, जो मनुष्य अपने हित चिंतन से पहले दूसरों के हित चिंतन के बारे में सोचता है, उस व्यक्ति को युगों युगों तक दुनिया की यादों में बना रहते हैं। ऐसे मनुष्य की मृत्यु को ही कवि ने सुमृत्यु कहा है। The person who thinks about the welfare of others above all else remains in the memories of the world for ages even after dying. The poet has called the death of such a person as सुमृत्यु। प्रश्न 2। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? How can a generous person be identified? आंसर, उदार व्यक्ति परोपकारी होता है, अपना पूरा जीवन पुण्य व लोकहित कार्यों में बिता देता है, किसी से भेदभाव नहीं रखता, आत्मीय भाव रखता है। कवि और लेखक भी उसके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं। वो निस्वार्थों का त्याग कर जीवन का मोह भी नहीं रखता। A generous person is charitable. He spends his whole life in virtuous and public welfare works, does not discriminate against anyone, has a soulful attitude. Poets and writers also discuss its qualities in their articles. He doesn't even keep the fascination of life by sacrificing his own interests. Before we move further, if you are new here, please subscribe to the channel and press the bell icon to get notification of new lessons and MCQs. If you like the content we make, please like the video by giving it a thumbs up and share the video with your friends and classmates. प्रश्न 3। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? How can a generous person be identified? Answer, उदार व्यक्ति की पहचान ये है कि वो इस असीम संसार में आत्मीयता का भाव भरता है, सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है, नित्य परोपकार के कार्य करता है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव होता है। The identity of a generous person is that he feels the sense of intimacy in this infinite world, treats all beings with affinity, does charity work daily, who has a sense of sympathy and compassion towards others. उदार व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपने तन, मन और धन को किसी भी क्षण त्याग सकता है, जो दूसरों की प्राण रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहता है। A generous person can sacrifice his body, mind and wealth at any moment to help others. Who is ready to sacrifice everything for the sake of saving the lives of others? वो जाति, देश, रंग रूप आदि का भेद किए बिना सभी को अपना मानता है। वो स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों का हित करता है। प्रेम, भाईचारा और उदारता ही उसकी पहचान है। He considers everyone as his own without distinction of caste, country, color, etc. He does good to others even after taking loss himself. Love, brotherhood and generosity are his identity. प्रश्न 4। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? What message has the poet given for humanity by giving examples of great people like Dadhichi, Karna, etc. Answer, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए ये संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को परोपकार करते हुए अपना सर्वस्व त्यागने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। By giving example of great persons like Dadhichi, Karna, etc. The poet has given this message to humanity that every human being should never hold back from giving up everything while doing charity. इन व्यक्तियों ने दूसरों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व दान कर दिया था। दधीची ने अपनी अस्थियों का तथा कर्ण ने कुंडल और कवच का दान कर दिया था। हमारा शरीर नश्वर है, इसलिए इससे मोह को त्याग कर दूसरों के हित चिंतन में लगा देने में ही इसकी सार्थकता है। यही कवि ने संदेश दिया है। These people had donated everything for the betterment of others. Dadhichi donated his bones and Karna donated the coil and armor. Our body is mortal, so leaving the attachment to it, it is meaningful only in thinking about the welfare of others. This is the message given by the poet.
प्रश्न 5। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? In which lines has the poet expressed that we should lead a prideless life? आंसर, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जो परोपकार के लिए जीता और मरता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। The poet has given the message of sacrifice and sacrifice to the entire humanity by giving examples of great persons like Dadhichi, Karna, etc. Everyone lives for himself, but the one who lives and dies for charity, his life becomes blessed. पौराणिक कथाओं के अनुसार दधीची ऋषि ने वृत्रासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया। इसी प्रकार कर्ण ने अपने जीवन रक्षक कवच कुंडल को अपने शरीर से अलग करके दान में दिया था। According to mythology, Dadhichi Rishi donated even his bones to protect the deities from Vritrasura. Similarly, Karna had donated his lifesaver, Kavach Kundal, by separating it from his body. रंतिदेव नामक दानी राजा ने भूख से व्याकुल ब्राह्मण को अपने हिस्से का भोजन दे दिया था। राजा शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया। A charitable king named Rantidev had given his share of food to a Brahmin distraught with hunger. King Shivi cut the flesh of his body and gave it to save the pigeon's life. ये कथाएं हमें परोपकार का संदेश देती हैं। ऐसे महान लोगों के त्याग के कारण ही मनुष्य जाति का कल्याण संभव हो सकता है। कवि के अनुसार मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए मोह का त्याग कर देना चाहिए, उसे केवल परोपकार करना चाहिए। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। According to the poet, man should give up attachment to this mortal body. He should only do charity. In fact, a true man is the one who sacrifices his everything for another man. These stories give us the message of charity. The welfare of mankind can be possible only because of the sacrifice of such great people. प्रश्न 6। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। What do you understand by man is only brother? Explain. Answer. इस कथन का अर्थ है कि संसार के सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं, इसलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी एक ईश्वर की ही संतान हैं। अगर कुछ भेद दिखाई देते भी हैं, तो वे सभी बाहरी भेद हैं और वे भी अपने अपने कर्मों के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। This statement means that all the people of the world are brothers. So we should not discriminate against anyone. All are children of one God, even if some differences are visible. They are all external differences and they are also visible according to their respective actions. मनुष्य मात्र बंधु हैं, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को हर निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सभी आपस में भाईचारे की भावना से रहें तथा सभी में प्रेम एवं एकता का संचार हो। Humans are just brothers. That's why the slogan of Vasudeva Kutumbakam is raised. Every man should try to remove the pain of every weak man. Everyone should live with the feeling of brotherhood and there should be communication of love and unity among all. प्रश्न 7। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? Why has the poet inspired everyone to walk together? Answer. कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि इससे आपसी मेल भाव बढ़ता है तथा हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। यदि हम सभी एक होकर चलेंगे तो जीवन मार्ग में आने वाली हर विघ्न बाधा पर विजय पा लेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो वो सार्थक सिद्ध होता है। सबके हित में ही हर एक का हित निहित होता है। The poet has inspired everyone to walk together because it increases mutual harmony and all our works become successful. If we all walk together,
then we will overcome every obstacle that comes in the way of life. When efforts are made by all together, it proves fruitful. Everyone's interest lies in the interest of all. आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ने से प्रेम व सहानुभूति के संबंध बनते हैं तथा परस्पर शत्रुता एवं भिन्नता दूर होती है। इससे मनुष्यता को बल मिलता है। कवि के अनुसार यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। By taking each other's support and moving forward, relations of love and sympathy are formed and mutual enmity and differences are removed. This gives strength to humanity. According to the poet, if we support each other, we will be able to move forward on the path of progress. प्रश्नार्थ, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। What kind of life should one lead? Write on the basis of this poem. Answer. व्यक्ति को सदा दूसरों की भलाई करते हुए, मनुष्य मात्र को बंधु मानते हुए तथा दूसरों के हित चिंतन के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे अपने अभीष्ट मार्ग की ओर निरंतर सहर्ष बढ़ते रहना चाहिए। A person should always spend his life doing good to others, considering all human beings as friends and sacrificing everything for the welfare of others. Apart from this, he should continue to move towards his desired path with joy. प्रश्न 9. मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? What message does the poet want to convey through the poem? मनुष्यता. Answer. मानव जीवन एक विशिष्ट जीवन है क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है। क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है। क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है। अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी वैचारिक शक्ति का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। Human life is a special life because there is a feeling of love, sacrifice, charity in human mind. It is the duty of a human being to make good use of his power, his intelligence and his ideological power while worrying about others before himself. Through the presented poem, the poet wants to convey the message of human unity, sympathy, harmony, generosity and compassion. वो चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। वो चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। वो चाहता है कि मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। वो दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे। वो दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे। वो दीन दुखियों, जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहे। वो पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीची, कर्ण, रंतिदेव के अतुलनीय त्याग से प्रेरणा ले। वो पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीची, कर्ण, रंतिदेव के अतुलनीय त्याग से प्रेरणा ले। वो पौराणिक कथाओं के माध्यम से विभिन्न महापुरुषों जैसे दधीची, कर्ण, रंतिदेव के अतुलनीय त्याग से प्रेरणा ले। ऐसे सत्कर्म करे जिससे मृत्यु उपरांत भी लोग उसे याद करें, उसका यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे। ऐसे सत्कर्म करे जिससे मृत्यु उपरांत भी लोग उसे याद करें, उसका यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे।
ऐसे सत्कर्म करे जिससे मृत्यु उपरांत भी लोग उसे याद करें, उसका यश रूपी शरीर सदैव जीवित रहे। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना व स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना व स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना व स्वयं ऊंचा उठने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही मनुष्यता का वास्तविक अर्थ है। He wants man to feel his belonging in the whole world. He was ready to make the biggest sacrifice for the poor and the needy. He should take inspiration from the incomparable sacrifice of various great men like Dadichi, Karna, Rantidev through mythology. Do such good deeds that people remember him even after his death. May his fame-like body live forever. The real meaning of humanity is to live life selflessly, to be useful to others and to elevate oneself as well as elevate others. प्रश्न 10। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोकवर क्या न सामने झुका रहा। इन पंक्तियों का भाव है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक मनुष्य के जीवन में समय असमय आने वाले हर दुख दर्द में सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के दुख दर्द का बोझ सहानुभूति की प्रवृत्ति होने से कम हो जाता है। वास्तव में सहानुभूति दर्शाने का गुण महान पूंजी है। The meaning of these lines is that every human being should have sympathy in every sorrow and pain that comes in the life of every human being from time to time, because the burden of each other's sorrows and pains is reduced by having a tendency of sympathy. In fact, the quality of showing sympathy is a great asset. पृथ्वी भी सदा से अपनी सहानुभूति तथा दया के कारण वशीकृता बनी हुई है। भगवान बुद्ध ने भी करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया। विनम्र होकर ही किसी को झुकाया जा सकता है। उदाहरणार्थ फलदार पेड़ तथा संत महात्मा हमेशा अपनी विनम्रता से ही मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। The earth too has always been captivated by its sympathy and kindness has been made. Lord Buddha also compassionately opposed the traditional beliefs of that time. One can be bowed down only by being humble. For example, fruit trees and Saint Mahatma always do favor to mankind only by their humility. प्रश्न 11। रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि के अनुसार समृद्धशाली होने पर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही परम पिता है। धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनाथ अनुभव करता है। इसका परिणाम ये होता है कि वो स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है। इस कारण वो अभिमानी हो जाता है। कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता और जीता है। According to the poet, one should never be proud even after being prosperous. No one is often here because God is the Supreme Father. A man surrounded by wealth and family members feels himself to be a saint. The result of this is that he starts thinking of himself as safe. Because of this he becomes arrogant. The poet says that a true man is one who lives and dies for the welfare of the entire human race. वो आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। भगवान सारी सृष्टि के नाथ हैं, संरक्षक हैं, उनकी शक्ति अपरंपार है। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ हैं। वो प्राणी भाग्यहीन है जो मन में अधीर, अशांत, असंतुष्ट और अतृप्त रहता है और अधिक पाने की ललक में मारा मारा फिरता है। अतः व्यक्ति को समृद्धि में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।
He even sacrifices his body for others when needed. God is the Lord of the whole creation, the protector, his power is limitless. They are able to protect and follow everyone with their immense resources. Unfortunate is that creature who remains impatient, restless, and unsatisfied in mind and wanders around in the urge to get more. That's why a person should never be proud of prosperity. प्रश्न 12। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति, विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि मनुष्य को अपने निर्धारित उद्देश्य रूपी मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक विघ्न बाधाओं से जूझते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए परस्पर भाईचारे की भावना उत्पन्न करो, जिससे आपसी भेदभाव दूर हो जाए। इसके अतिरिक्त बिना किसी तर्क के सतर्क होकर इस मार्ग पर चलना चाहिए। Answer: The meaning of these lines is that a man should happily keep on moving forward on the path of his intended purpose while battling with obstacles. While walking on this path, create a feeling of mutual brotherhood, so that mutual discrimination can be removed. Apart from this, one should tread this path cautiously without any logic. Thank you for watching. Hope you like this video. If you do like, then please give it a thumbs up and share the video with your friends and classmates. If you are new here, do subscribe to the channel and press on the bell icon so that you will not miss out on the latest lessons and MCQs.